who's just sitting in front of their laptops, staring at the blank Word doc, and you're not able to understand how to write a dissertation. You're struggling with writing a dissertation, or you're very much confused about the structure of the dissertation. You do not know how to choose a topic, or if you have chosen a topic, you do not know how to research about it. So in all these scenarios, this video is definitely going to be a guide for you guys. So hi guys, I am Shivika Mehra, and in today's video, I will be telling you guys how to write a dissertation. I will be breaking each step in great detail to make it easy for you, to simplify things for you. So as someone who has written dissertations during undergraduation and post-graduation degrees, I completely understand that writing a dissertation is a task. There are so many doubts that you have in your mind, but as someone who has been there, who has done that, I have finally cracked a very simple formula to write a dissertation. And in today's video, I will be telling you all the possible steps that if you take, you will be able to write a dissertation in a very simple manner. And towards the end of the video, I will also be sharing some of the bonus tips that really helped me while I was writing my dissertations. So please stay tuned and watch till the end, and let's get started with the video. Let's get started by understanding that what exactly is a dissertation. So a dissertation is a lengthy academic paper based on independent research. So basically, through writing a dissertation, you are planning to explore a particular topic. You are not exploring like a wide range of topics, you're just focusing on one single topic. So basically, dissertation का मतलब simple होता है that you're planning to write an academic paper. This is basically done for educational purposes, and it is an independent research because usually dissertation आप अकेले देखते हैं. It is not an activity जो teams में होती है. You are writing your dissertation on your own, so it is completely your onus कि जब आप research कर रहे हो, जब आप लिख रहे हो, so the entire thing is completely on you. There's no teamwork involved in here. And basically, and in usual cases, a dissertation is written in the final year of your undergrad or post graduation. So depending on if you're doing a post graduation or if you're doing an undergraduation, तो जब भी आपका final year होता है, तब यूजुअली आपको डिसर्टेशन लिखने को बोलता है द इंस्टीट्यूट, द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ अ डिसर्टेशन. I have divided the entire process of writing a dissertation into mainly 7 steps, and ये मैं सारे के सारे 7 steps आपको explain करूँगी of course in great detail, because जब तक आपको each step समझ नहीं आएगा in great detail, you would not be able to go ahead with writing a dissertation. So let's get firstly started by simply understanding कि exactly what are these 7 steps. So the first step, and from where you start writing and you actually venture into that era of where you will start writing a dissertation, and you will be actually diving yourself into a particular topic. The first step is that you have to choose a topic. The second step is that you have to draft a proposal. The third step is that you have to conduct literature review. Step number 4 is you have to research, and then you have to collect the data. So that is basically data collection. Step 5 is that you have to structure and you have to do the chapter planning of your dissertation. Step 6 is that you have to start writing your dissertation, and the last step is that you have to do proofreading, and then you have to of course submit your dissertation. So let's get started by understanding all these 7 steps in great detail. The first step, which is choose a topic, and always remember that your topic is everything. Basically जो topic आपने choose करा that equals to your dissertation. That is why this is the first and the most crucial step. Always remember कि जो भी आप topic choose करते हो, be very sure of it. Be very sure कि मैंने इसी पे research करनी है, मैं इसी पे लिखूंगी. Never think that midway आप अपना topic change कर लोगे, आप divert कर जाओगे, because then it will be very difficult for you only. Because if you have been researching and doing
everything relating to a particular topic and then आप divert कर जाते हो, then you can only imagine कि जितनी भी research आपने करी थी about this particular topic that goes down the drain of course, but तब तक you are so mentally exhausted कि जो आपने second topic choose करा है उस पर भी your attention is like all over the place. Do not do this mistake. Be very sure when you are picking on a topic. And now the common question is कि exactly how do we choose a topic? This is the first question जो I think हम सबके दिमाग में आता है. In fact, when I was doing my undergraduation and when I was doing my post graduation, it was very difficult for me to shortlist a topic. And you know उस time पे I was thinking every possible thing कि मैं इस पे भी research कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ. It was very difficult to choose one topic and उस time पे बहुत difficult होता है. I completely understand. But if you keep in your mind these 4 points, आप एक बहुत good topic, you will be able to choose a very nice topic for your dissertation. And let's get started by understanding that what exactly are these 4 points. The first one is that your topic should be very 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 specific. As I mentioned, आपका topic बहुत ज़्यादा broad नहीं होना चाहिए, because if it is broad, it is all over the place. It becomes very difficult for you to conduct a research. And अगर आप कंडक्ट कर भी लेते हो रिसर्च, योर थॉट्स, योर माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज विद इन अ लिमिटेड वर्ड काउंट जो आपको डेजिटेशन में लिखना होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट एवरी पॉसिबल थिंग. एंड इफ यू राइट एवरी पॉसिबल थिंग, द सुपरवाइजर कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हो. एंड दैट ऑल्सो डिफीट्स द पर्पस ऑफ द डेजिटेशन, बिकॉज डेजिटेशन का मतलब ही होता है दैट यू आर राइटिंग अ लॉन्ग अकेडमिक पेपर ऑन अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक. सेकेंड वन इज दैट योर टॉपिक शुड बी रेलिवेंट. नाउ रेलिवेंट टू वॉट? It should be relevant to the degree that you are pursuing. I did my undergrad and my post graduation in law, and both of my dissertations were relating to that field. So relevant का मतलब है कि जिस भी फील्ड में आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो जो डेजिटेशन टॉपिक आप चूज करते हो वो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड डेफिनेटली होना चाहिए. थर्ड पॉइंट है दैट इट शुड बी रिसर्चेबल. अगर मटीरियल ही नहीं होगा टू कंडक्ट रिसर्च ऑन, टू मे बी स्टडी अबाउट इट, रीड अबाउट इट, गिव योर व्यूज अबाउट इट, देन हाउ विल यू पॉसिबली राइट अ डेजिटेशन? ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव some articles, some sayings, some reading material, some thoughts written by scholars, professionals or other people present in our society, जिसको पढ़ने के बाद ही आप अपना उसके ऊपर opinion दे पाओगे. So of course, while on one hand your topic should be specific, it should definitely be a topic जिस पे research material available हो. Because if you are venturing into a topic जो बहुत ज़्यादा new है या जिस पे अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोला गया है, so it is very difficult for you to maybe write a dissertation, because at the end of the day you have to write certain वर्ड्स. जो आपकी वर्ड लिमिट होती है वो आपको पूरी करनी ही होती है फिर डेजिटेशन. एंड अगर बहुत नहीं है टू राइट अबाउट ऑन अ टॉपिक, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. देन यू ड्रैग थिंग्स, आप बहुत ही रिपीट करते हो, यू आर ट्राइंग टू जस्ट स्क्विरल अराउंड दैट वन पर्टिकुलर थिंग. सो वो गलती मत करना. जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर चूजिंग अ टॉपिक, बट जो वो स्पेसिफिक टॉपिक आप चूज कर रहे हो उस पर इनफ बोला गया है, उसके बारे में इनफ मटीरियल है. बी वेरी श्योर अबाउट दैट. एंड द लास्ट एंड इन माई ओपिनियन, लाइक पर्सनली जो मैंने किया था व्हेन आई वाज राइटिंग माई डेजिटेशन वाज दैट choose a topic which is interesting, which really interests you. I was lucky enough that during both my degrees, undergrad and postgrad, मैंने वो ही topics choose करे थे that actually were of my interest. Because to be very out there to tell you guys, मैं उस पर कोई sugar coat करके आपको नहीं बताना चाहती, but writing a dissertation is a very lengthy process. Like approximately आपको 1 साल बैठना होता है with a particular topic. You are doing your research about a particular topic for a year for sure. Like at least 8 to 9 months आप उसी particular topic पे research कर रहे होते हो, आप उसी particular topic से related चीज़ें पढ़ रहे होते हो, आप उसी के बारे में लिख रहे होते हो. So everything is relating to just one topic. And अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चूज कर रहे हो जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टिक टू दैट टॉपिक फॉर अबाउट 8-9 months. आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे. सो द फर्स्ट
लाइक यू नो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये आना चाहिए दैट इज द टॉपिक इंटरेस्टिंग, द टॉपिक दैट यू आर थिंकिंग ऑफ, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, डज द टॉपिक इंटरेस्ट यू, क्या आपको उस टॉपिक के बारे में पढ़ने में, उसके बारे में रिसर्च करने में, क्या उस टॉपिक के बारे में ओपिनियन देने में क्या आपको मज़ा भी आएगा या नहीं. सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ वेन एवर यू फाइनलाइजिंग अ टॉपिक फॉर योर डेजिटेशन. सो दीज आर द 4 points that you have to keep in mind whenever you are shortlisting a topic for your dissertation. So now step number 2 is that you have to draft a research proposal. अब research proposal का simple मतलब ये होता है कि आप बहुत brief में अपने dissertation supervisor को बताते हो everything that you are planning to include in your dissertation. अब इसका मतलब क्या हुआ? You have to explain the topic, the purpose and the research question. टॉपिक का बहुत सिंपल मतलब यही है, ऑफ कोर्स द टॉपिक दैट यू आर प्लानिंग टू राइट योर डेजिटेशन अपॉन. सो आप उस रिसर्च प्रपोजल में जो वो ड्राफ्ट है ऑफ द रिसर्च प्रपोजल उसमें आप मेंशन करते हो कि एग्जैक्टली आप कौन से टॉपिक के बारे में रिसर्च करने लगे हो. सेकंड अप इज योर पर्पस, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ रिसर्च, क्यों आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक चूज करा है एंड एग्जैक्टली आपका पर्पस ऑफ रिसर्च क्या होगा. एंड थर्डली व्हाट एग्जैक्टली इज द रिसर्च क्वेश्चन. सो व्हेन एवर यू पिक अ पर्टिकुलर टॉपिक उससे रिलेटेड कई थ्योरीज चल रही होती है इन द मार्केट एंड यू आर रीडिंग अ कपल ऑफ एंड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड वो सारे आर्टिकल्स पढ़ के आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही आप अपनी पूरी रिसर्च कंडक्ट करते हो. सो दैट पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन इज द मेन क्रक्स ऑफ योर डेजिटेशन. सो यू हैव टू मेंशन दैट मेन क्रक्स ऑफ योर डेजिटेशन इन द रिसर्च प्रपोजल. नेक्स्ट अप इज द मेथोडोलॉजी. अब कई तरीके के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो फॉर योर डेजिटेशन एंड सम ऑफ द मेथोडोलॉजीज are mentioned right here. The first one is qualitative, next is quantitative, third is comparative, next is empirical and the last one is doctrinal. So in सारी methodologies में से exactly आप कौन सी methodology यूज़ करोगे फॉर राइटिंग योर डेजिटेशन टू कंडक्ट द रिसर्च फॉर योर डेजिटेशन, यू ऑल्सो हैव टू मेंशन दैट इन योर रिसर्च प्रपोजल. एंड लास्टली वंस everything is written, you're very sure of the topic, the purpose, the research question, the methodology that you're going to opt for, you have to draft a research proposal and you submit that to your supervisor and then you seek approval. The research proposal gives a very clear idea to your supervisor ki what they can expect from your dissertation paper. So be very sure of your research proposal. Every word that you write in your research proposal should make sense and it should be in sync with the dissertation जो आप लास्ट में सबमिट करेंगे and submit it to the supervisor, seek their approval. अगर आप अप्रूवल सीख किए बिना अपनी डेजिटेशन शुरू करते हो इट बिकम्स वेरी मेसी टूवर्ड्स द एंड. नेवर डू दैट मिस्टेक. सो नाउ द थर्ड स्टेप इज टू कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू. अब लिटरेचर रिव्यू का बहुत सिंपल मतलब होता है दैट यू हैव टू रीड व्हाट अदर स्कॉलर्स हैव सेड. तो जो भी आपने पर्टिकुलर टॉपिक चूज करा है एंड उसका जितना भी रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है यू हैव टू रिव्यू दैट. अब वो आप रिव्यू इसलिए करते हो सो दैट यू नो कि जो बाकी और लोग है in our society, the other learned people in the society, उन्होंने उस particular topic के बारे में क्या बोला है. And why do you conduct a review is to identify the gaps and to see the disagreements. अब आप gaps identify इसलिए करते हो या आप disagreements इसलिए figure out करते हो जो मे बी दो scholars के बीच में about a particular topic so that you can make your own opinion. And basically आपकी जो पूरी dissertation होगी that will be based on the opinion that you have. For an example, अगर आज आप कोई article read कर रहे हो और if you are reading a research paper written on a topic of your interest जो आपने basically dissertation के लिए topic चूज करा था, उसी टॉपिक पे आपको कोई रिसर्च पेपर कोई आर्टिकल मिल जाता है जो आप रीड कर रहे हो एंड व्हाइल रीडिंग दैट आर्टिकल यू फील दैट एक कोई ऐसा पॉइंट था जो बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं हुआ और देयर कुड हैव बीन अनदर पॉइंट, अनदर थॉट, अनदर पर्सपेक्टिव जो हो सकता था अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच इज मिसिंग. यू हैव आइडेंटिफाइड अ गैप इन दैट एंटायर पेपर एंड जब आप बहुत सारे और मटेरियल या बहुत सारा और पेपर्स पढ़ते हो relating to that particular topic, you realize that that gap is not covered by any other scholar as well.
किसी और ने भी उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव या उस पर्टिकुलर थॉट जो आपके दिमाग में आया था, जो उस टॉपिक से बहुत ब्यूटिफुली रेलिवेंट था, उसके बारे में किसी और ने बात करी नहीं है. एंड दैट इज़ वेयर यू नो दैट यू हैव टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन अबाउट दैट टॉपिक. एंड अनदर पार्ट इज कि अगर आपको लगता है कि किन्हीं दो स्कॉलर्स के बीच में अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू हैव चोजन कोई डिसएग्रीमेंट हुआ था एंड मे बी यू आर साइडिंग वन ऑफ दोज, या फिर यू हैव अनदर ओपिनियन, मतलब आपका कोई थर्ड ही ओपिनियन है. सो टू आइडेंटिफाई कि आप कौन सी पार्टी की साइड लेना चाहोगे व्हाइल यू आर प्लानिंग टू राइट योर डिसर्टेशन, या फिर आपका कोई थर्ड ओपिनियन ही तो नहीं है विच इज़ मे बी मोर रेलिवेंट देन दीज टू आर्ग्यूमेंट्स, वो आप मेंशन करना चाहोगे व्हाइल राइटिंग योर डिसर्टेशन, तो वो भी आप कर सकते हैं. सो टू बी एबल टू मे बी साइड अ टीम और टू मे बी बिल्ड अ थर्ड ओपिनियन, यू हैव टू डू अ लिटरेचर रिव्यू. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, मतलब ये मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी क्रूशियल टिप दे रही हूँ, विच इज़ दैट वेन एवर यू आर डूइंग अ लिटरेचर रिव्यू, बी वेरी श्योर ऑफ मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिंक्स एंड ऑफ ऑल द सोर्सेज जो आपके पास आए हैं वाइल डूइंग योर लिटरेचर रिव्यू. बी वेरी श्योर, ये गलती कभी मत करना कि जब भी आप कोई आर्टिकल या जब भी आप कोई मटेरियल पढ़ रहे हो या जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो फॉर दैट मैटर ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ योर डिसर्टेशन, नेवर एवर लेट गो ऑफ दोज लिंक्स और सोर्सेज. ये कभी भी मत सोचना कि बाद में जब मैं रिसर्च करूँगी तो मुझे फिर ये आर्टिकल या फिर ये लिंक फिर ये सोर्स मिल जाएगा. नो, जैसे ही आपको कोई भी आर्टिकल कोई भी मटेरियल मिलता है which relates to your topic, make a list and उस लिस्ट में राइट ऑल दोज लिंक्स ऑल दोज सोर्सेज, बिकॉज इन द फ्यूचर वो आपके बहुत ज़्यादा काम आता है. वो कैसे काम आता है दैट आई टेल यू इन द कमिंग मिनट्स ऑफ द वीडियो. नाउ द फोर्थ स्टेप इज दैट यू कंडक्ट रिसर्च एंड यू कलेक्ट द डेटा. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग मिनट्स ऑफ द वीडियो में बताया था, जहाँ पे आपने अपना एक रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट करा था एंड उसमें यू हैड मेंशन द मेथडोलॉजी जो आप यूज़ करोगे व्हाइल कंडक्टिंग योर रिसर्च. तो ये 5 तरीके की यूजुअली मेथड्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू कंडक्ट योर रिसर्च. तो जो भी मेथड पे आपने डिसाइड किया है जो आप यूज़ करोगे व्हाइल कंडक्टिंग योर रिसर्च, यू हैव टू गेट ऑन टू इट, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग योर रिसर्च, यू हैव टू स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा. बेसिकली आप पढ़ना शुरू कर देते हो इन ग्रेट डिटेल कि क्या मटेरियल अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, व्हाट ओपिनियंस आर यू एबल टू फॉर्म बाय रीडिंग दैट मटेरियल एंड कौन सा मेथड आपकी रिसर्च के लिए बेस्ट है. यू ऑल्सो कम टू दैट कंक्लूजन. अब ये 5 मेथड्स है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन ईच ऑफ देम क्विकली एंड इन अ वेरी सिंपल मैनर, जिससे आपको पता चल जाए दैट विच मेथड अकॉर्डिंग टू योर फील्ड और अकॉर्डिंग टू योर डिसर्टेशन टॉपिक आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा. सो द फर्स्ट वन इज डॉक्ट्रिनल मेथड. इसमें बेसिकली हम ये यूजुअली मेथड तब यूज़ करते हैं व्हेन एवर यू आर प्लानिंग टू राइट योर डिसर्टेशन इन द फील्ड ऑफ लॉ. तो यूजुअली इसमें हम इंटरप्रेट एंड एनालाइज करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस लॉज और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीगल थ्योरीज, केसेस या स्टैट्यूट्स या बेयर एक्ट्स. सो बेसिकली ये यूजुअली मेथोडोलॉजी तब काम आती है व्हेन एवर यू आर राइटिंग योर पेपर इन रिलेशन टू एनीथिंग लीगल. तो जब भी आप कोई लीगल डिसर्टेशन लिख रहे होते हो, लीगल पेपर लिख रहे हो, तो देन दिस मेथोडोलॉजी कम्स इन हैंडी. नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव. सो कंपैरेटिव का बहुत सिंपल मतलब होता है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन लॉ डिसर्टेशंस, इज व्हेन यू कंपेयर टू jurisdictions or you compare two schools of thought. Basically comparative as the word suggests कि आप दो different opinions, दो different schools of thought को compare करते हो to come down to a conclusion in which maybe you can agree to one of those or maybe you can have a completely different opinion and maybe you can pick a side or you can not or you can maybe have a third perspective. तो वो depend करता है once of course you narrow down your research. Third one is quantitative. Quantitative का बहुत simple मतलब ये होता है that basically it is related to numbers and figures and stats. इसका simple मतलब है that maybe you conduct surveys, you conduct experiments, hand over questionnaires to different people asking about their opinion and basically कितने % लोग किस चीज़ को agree कर रहे हैं, कितने
कितने परसेंट किस चीज़ को एग्री नहीं करें, उस बेसिस पे आप अपना रिसर्च कंडक्ट करते हो, विच इज़ क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी. नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव. दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप्स, सर्विस जो आप कंडक्ट करते हो. सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दो ऐसी मेथोडोलॉजीज हैं जिनको मिक्स करके भी आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, विच इज़ नोन एज मिक्स्ड मेथोडोलॉजी. एंड द लास्ट वन इज एम्पेरिकल मेथोडोलॉजी. इसका सिंपल मतलब होता है कि जो रियल लाइफ केसेस हैं, जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, आप वो एनालाइज करते हो टू कम डाउन टू अ कंक्लूजन. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दीज इन ब्रीफ टू यू गाइज. ऑफ कोर्स यू कैन डू योर प्रॉपर रिसर्च ऑन दीज 5 टाइप्स टू सी which methodology suits the best for your dissertation. So now let's talk about the fifth and a very important step of writing a dissertation, which is structure and chapter planning. Structure and chapter planning basically हमें इसलिए करनी होती है so that the visual representation of your dissertation is pleasing to the eyes of the supervisor. तो जब भी supervisor आपकी dissertation को go through करेगा, उनको वो visually pleasing लगनी चाहिए. It should be in a proper format and usually most universities यही format फॉलो करती है जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी. सो मैं फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ द डेजिटेशन टिल द लास्ट पेज ऑफ योर डेजिटेशन कैसा दिखना चाहिए वो सारे पेजेस कवर करूंगी इन दिस वीडियो. सो द फर्स्ट पेज ऑफ योर डेजिटेशन इज यूजुअली द कवर पेज विच कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज द टाइटल पेज. अब इस कवर पेज एंड टाइटल पेज में आप ये सारी चीज़ें मैंशन करते हो. द फर्स्ट थिंग इज द टाइटल ऑफ द डेजिटेशन. ऑफकोर्स जो आपने टॉपिक चूज करा हो फिर डेजिटेशन आप वो मैंशन करते हो. नेक्स्ट अप इज योर नेम. Next is the name of your university for which you are writing the dissertation. Next up is your department. Next is the degree that you are pursuing. Next comes up the submission date. कौन सी डेट पे आप अपनी डेजिटेशन सबमिट कर रहे हो वो डेट आपको मेंशन करनी होती है, ऑफ कोर्स विद द ईयर. एंड लास्ट इज द नेम ऑफ योर सुपरवाइजर. सो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है यूजुअली in your cover page, which is the first page of your dissertation. So now the second page is usually the declaration page. अब declaration page में आप सिर्फ simply एक statement में ये mention करते हो that your work is original. आपने कहीं से भी कुछ भी copy नहीं किया है. It is 100% your original work and उसके साथ you write your name and you attach your signatures. So the next page is certificate from your supervisor. So basically certificate from your supervisor का मतलब ये है कि जो आपका सुपरवाइजर है who has been with you throughout your dissertation journey, वो एक सर्टिफिकेट देते हैं इन विच दे बेसिकली सर्टिफाई दैट ऑल द डेजिटेशन वर्क हैज़ बीन डन अंडर देयर गाइडेंस. सो बेसिकली वो ये मेंशन करते हैं कि जितना भी काम आपने किया है ऑफ राइटिंग अ डेजिटेशन दैट हैज़ बीन डन विद देयर अप्रूवल अंडर देयर गाइडेंस एंड दे वर अवेयर ऑफ एवरी पॉसिबल थिंग जो आपकी डेजिटेशन में हुई है ड्यूरिंग दैट इंटायर जर्नी ऑफ योर्स. सो नाउ द नेक्स्ट पेज इज एक्नॉलेजमेंट. बेसिकली एक्नॉलेजमेंट पे यू थैंक एवरी पर्सन who has helped you write your dissertation. तो उसमें वो सारे लोगों को बेसिकली आप थैंक यू बोलते हो जिन्होंने आपकी हेल्प करी फॉर राइटिंग योर डेजिटेशन. एंड दीज पीपल यूजुअली इंक्लूड योर फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल योर peers, your colleagues, and most importantly your supervisor. So basically the page of acknowledgement is like a thank you note to everybody, every person who has been with you, who has supported you throughout your dissertation journey. Next is abstract. So the next page of your dissertation is abstract. एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली आप एक समरी प्रोवाइड करते हो ऑफ योर एंटायर डेजिटेशन इन जस्ट 150 और 200 वर्ड्स. तो बेसिकली आप बहुत ब्रीफ में बताते हो कि आपकी डेजिटेशन का टॉपिक क्या है, एम क्या है, कौन से मेथड्स आपने यूज़ करे वाइल राइटिंग योर डेजिटेशन, द फाइंडिंग्स, एंड लास्टली बहुत ब्रीफ में यू गिव लाइक अ वेरी शॉर्ट कंक्लूजन टू योर डेजिटेशन. सो बेसिकली जो आपकी पूरी डेजिटेशन है उसकी जस्ट आप एक छोटे सा क्रक्स, एक छोटी सी समरी देते हो इन दिस एब्स्ट्रैक्ट विच गिव्स अ वेरी फेयर आइडिया टू द सुपरवाइजर और टू एनीवन रीडिंग योर डेजिटेशन दैट व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द कमिंग पेजेस और फ्रॉम द कमिंग चैप्टर्स ऑफ योर डेजिटेशन. सो द नेक्स्ट पेज इज टेबल ऑफ कंटेंट्स विच इज बेसिकली द इंडेक्स. अब इंडेक्स यूजुअली इंक्लूड करता है वो सारे चैप्टर्स की लिस्ट या वो सेक्शन
सेक्शंस या सब सेक्शंस जो बेसिकली हेल्प करते हैं सुपरवाइजर को या किसी और को हु इज प्लानिंग टू रीड ऑन टू योर डेजिटेशन टू बी एबल टू नेविगेट योर डेजिटेशन बेटर. सो आप ये चैप्टर्स, सेक्शन या सब सेक्शंस मेंशन करते हो इन द टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट विच इज बेसिकली द इंडेक्स विद द पेज नंबर, सो दैट अगर किसी को भी आपका डेजिटेशन का कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर रीड करना है या अगर उनको एक पर्टिकुलर चैप्टर को फिर से समझना है, सो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द इंडेक्स टू बी एबल टू गो ऑन टू दैट एग्जैक्ट पेज जिसमें आपने उस चैप्टर या उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है. सो बेसिकली बेटर स्ट्रक्चरिंग में आपकी हेल्प करता है टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड उन लोगों को भी हेल्प करता है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड योर डेजिटेशन बेटर हु आर रीडिंग योर डेजिटेशन मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जब भी आप अपनी डेजिटेशन लिखते हो एंड जब भी आप फॉर्मेट कर रहे हो तो बी वेरी 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 श्योर कि आप अपने हर चैप्टर को प्रॉपर पेज नंबर दो, एंड जो भी चैप्टर जिस भी पेज नंबर से शुरू होता है, जिस पेज नंबर में एंड होता है, कौन से पेज नंबर से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली एंड इन अ वेरी करेक्ट मैनर आप अपने इंडेक्स में डेफिनेटली मेंशन करो. सो टेबल ऑफ कंटेंट्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरिंग योर डेजिटेशन. So the next one is list of abbreviations. List of abbreviations का simple मतलब होता है कि आप एक list बनाते हो of all those short forms जो आपने यूज़ करी है for words in your dissertation. तो basically वो short forms जो आप यूज़ कर रहे हो throughout your dissertations उसकी एक list बनती है जो आप mention करते हो in the initial pages of your dissertation, जो बहुत ज़्यादा important है, जो basically help करती है to navigate and understand the language of your dissertation, because इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स या कुछ ऐसे टर्म्स आप यूज़ कर रहे हो जो सामने वाले इंसान को, जो रीडर को मे बी समझ नहीं आएंगे अनलेस यू टेल देम द इंटायर मीनिंग ऑफ दैट वर्ड और द फुल फॉर्म ऑफ दैट वर्ड. सो बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्म है एंड फुल फॉर्म है ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड जो आप यूज़ कर रहे हो इन योर डेजिटेशन, वो आप इस लिस्ट में इन डिटेल मैंशन करते हैं. So now we are planning to go on to the major part of our dissertation, which is that we plan the main body of our dissertation. तो अब तक जो हम सारी चीज़ें कर रहे थे they were necessary for the formatting and everything, but now we come to the actual dissertation. तो proper dissertation लिखने से पहले we first try to structure it. So किसी भी रफ नोट पैड पे या अपने लैपटॉप पे you plan a structure of how you want to go about writing your dissertation, and usually जो आपकी main body होती है of the dissertation उसमें आपकी सारी चीज़ें include करते हैं depending on the need of your topic and depending on your understanding. So the first one is of course the introduction. अब introduction का बहुत simple मतलब ये है that you will have to introduce your topic. आप basically बताओगे कि क्या आपका topic है, किस टॉपिक पे आप बेसिकली रिसर्च करने लगे हो, क्या आपको लगता है इस टॉपिक में स्कोप है या क्या गैप्स रह गए हैं इस टॉपिक में, और व्हाट डिफरेंसेस देयर माइट बी अमंग वेरियस स्कॉलर्स जो आपने रीड करा, एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दोज डिफरेंसेस. सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप बहुत ब्रीफली बताते हो कि आपका जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, क्या आपका रिसर्च क्वेश्चन है, क्यों आप ये डेजिटेशन कंडक्ट कर रहे हो, क्यों आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स बेसिकली द आउटलाइन ऑफ योर एंटायर डेजिटेशन एंड व्हाट रिसर्च क्वेश्चन विल यू एक्चुअली बी डीलिंग विद, वो आप मेंशन करते हो इन योर इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स लिटरेचर रिव्यू. सेकेंड आपके यूजुअली चैप्टर्स में आता है लिटरेचर रिव्यू. पोस्ट यू हैव रिटन इंट्रोडक्शन देन यू राइट लिटरेचर रिव्यू. उसमें बेसिकली आप बताते हो दैट एट द मोमेंट इन आवर सोसाइटी ये डेटा प्रेजेंट है अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. यू अगेन देन मेंशन अ लिटिल बिट इन डिटेल कि क्या गैप्स हैं, क्या डिफरेंसेस है, क्या आपको ओपिनियन हो सकता है अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, क्या आपको कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रही हैं अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो एंड आप रीड कर रहे हो, क्या आर्टिकल्स एंड केसेस आपने पढ़े, क्या एग्जिस्टिंग केस लॉज हैं. सो एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग यू ट्राई एंड राइट इन दैट लिटरेचर रिव्यू. नेक्स्ट स्टेप इज योर रिसर्च मेथडोलॉजी. आप अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी मेंशन करते हो जिसमें आप बताते हो कि एग्जैक्टली आपने एक पर्टिकुलर रिसर्च मेथडोलॉजी क्यों ऑप्ट करी, व्हाट एग्जैक्टली यू गेन्ड एंड गैदर्ड बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेथडोलॉजी. क्या सर्वेज, क्या इंटरव्यूज़, क्या क्वेश्चनर्स आपने सर्कुलेट करे थे, क्या बेसिकली आपने सर्वेज, इंटरव्यूज़ देखे, पढ़े, लोगों से बात करी, एंड
and what you gained from those interviews, from those public interactions. So basically आपने जो research methodology adopt करी, जो आपने implement करी while conducting this entire process ऑफ डूइंग योर रिसर्च, आप उसके बारे में बहुत ब्रीफ में बताते हो. नेक्स्ट इज योर मेन एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इज व्हेन यू कम टू योर टॉपिक एंड यूजुअली जो आपका मेन एनालिसिस होता है दैट इज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 to 4 चैप्टर्स डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ योर टॉपिक एज आई मेंशन्ड. तो जो आपका मेन एनालिसिस होता है उसमें बेसिकली जितना भी मटीरियल आपने कलेक्ट किया है, जितने भी आपके ओपिनियंस हैं, जो भी मेन रिसर्च क्वेश्चंस हैं, उनको आप फर्दर बाइफिकेट करके सेक्शन, सब सेक्शंस, चैप्टर्स में लिखते हो इन विच यू डिस्कस एवरी पॉसिबल थिंग जो आप सोचते थे कि आपको अपनी डेजिटेशन में मेंशन करनी है, उसको आप एक्सप्लेन करते हो इन ग्रेट डिटेल, मे बी विद सम एग्जाम्पल्स, मे बी बाय कोटिंग सम ऑफ द स्कॉलर्स के विजडम भरे वर्ड्स, एंड मे बी सम ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन आवर सोसाइटी, एंड यू कैन ऑल्सो मे बी गिव सम इनपुट ऑन वाई दोज डिसएग्रीमेंट्स आर टेकिंग प्लेस एंड डू यू अग्री विद देम और नॉट, और मे बी इफ यू हैव अ थर्ड पर्सपेक्टिव आप वो मेंशन कर सकते हो. सो that is your main analysis. And lastly and very important is your conclusion. Without conclusion no dissertation is ever complete. तो conclusion में basically आप summarize करते हो अपनी सारी findings. What is your final opinion on that particular topic? What do you agree with? What you do not agree with? And you also towards the end of the conclusion mention that if maybe there's some scope of research, maybe there's some scope of further research that is needed in this particular topic which maybe our society is lagging at the moment. कुछ gaps हैं जो फिल हमारी society को definitely करने चाहिए, and you end the conclusion usually with a couple of suggestions that you maybe want to give relating to that particular topic. तो ये आपका जब आप conclusion draft कर लेते हो, you are able to pinpoint कि आपको क्या क्या चीज़ें conclusion में लिखनी है, that is when your main body is ready. Now we talk about the last bits of our dissertation which is the end matter. एंड मैटर में यू हैव टू राइट द बिब्लियोग्राफी. तो जैसे मैंने अभी आपको अर्लियर मिनट्स ऑफ द वीडियो में बताया था कि जब भी आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ बी वेरी श्योर कि जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी लिंक्स हैं, जितना भी डेटा है उसको आप बहुत सिस्टमैटिकली एक लिस्ट फॉर्म में स्टोर कर लो, बिकॉज ये आप जब बिब्लियोग्राफी लिख रहे हो तो तब आपके बहुत काम आता है. सो बेसिकली बिब्लियोग्राफी में आप वो सारे रेफरेंसेस, साइटेशंस, सोर्सेज और लिंक्स मेंशन करते हो. ऑल दोज बुक्स, ऑल दोज रेफरेंसेस, ऑल दोज रीडिंग मटीरियल्स जो आपको काम आए हैं while conducting your research and while writing your dissertation. जब भी आपने अपनी dissertation लिखी है, जो भी आपके thoughts हैं in your dissertation, those are definitely inspired by some of those ideas or some of those articles which are already written down. Some of those materials, books, links, sources, references, citations which are already present in our society. And वो सारे reading material को आपको refer करना ही होता है in your bibliography. Basically this is a way of giving credit to all those people जिनका material आपने read करा, which were basically a source of inspiration for you while you were writing your dissertation. Now let's talk about step 6 which is start writing your dissertation, which is the most important step of course कि आप finally अब अपनी dissertation लिखना शुरू करते हो. But before writing your dissertation, before actually formulating your dissertation, please keep all these points in mind. ये बहुत आपके काम आएंगे whenever you are writing your dissertation. So the first one is that please write in a formal tone. अब formal tone का बहुत simple मतलब ये कि हमेशा अपने दिमाग में याद रखो that whenever you are writing a dissertation, it is an academic paper that you are going to write and submit to your university. तो इस चीज़ का हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो आप पेपर लिख रहे हो, जो आप पेपर सबमिट करोगे, that is of utmost importance academically. प्लस जो भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, जो भी टॉपिक आपने चूज़ करा है, ऑफ कोर्स रिलेटिंग टू योर इंटरेस्ट, रिलेटिंग टू योर फील्ड, योर डिग्री, योर ओपिनियंस ऑन दैट टॉपिक विल डेफिनेटली बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. तो बेसिकली जो भी आप लिख रहे हो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट विल एड ऑल टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो जो भी आप चीज़ लिख रहे हो दैट शुड बी एट मोस्ट सीरियस. आपको बहुत फॉर्मल टोन में लिखना है. यू कैन नॉट गो इनफॉर्मल, यू कैन नॉट टेक इट इन अ
fun way. So be very clear while doing that. Next step is that you should have to be very clear about the headings and the subheadings. Headings and subheadings में आपको clarity इसलिए चाहिए because anybody who is reading your dissertation, be it your supervisor or be it any other person for that matter, in the times to come कोई भी आपकी dissertation पढ़ता है and अगर आपने clear heading and subheadings लिखी है, it becomes very easy for them to read your dissertation because वो एक flow create होता है, they are able to link one chapter to another. Whereas अगर बहुत unclear heading and subheadings है, if the person is not able to join the dots, वो link ही नहीं कर पा रहा है एक chapter को दूसरे chapter से या एक heading को दूसरी subheading से, then the entire purpose of your dissertation is defeated. Because I completely understand dissertation is a very 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 lengthy document. आप बहुत सारे words लिख रहे हो, तो you are writing thousands of words, तो there are chances कि आप थोड़ा सा haywire हो जाओगे. But if your headings are very clear, if your subheadings are very clear, so there are very bleak chances कि आपका dissertation किसी भी तरीके से haywire जाएगा. All your chapters, all your headings, subheadings will be in a systematic manner जो बहुत ज़्यादा impress करेगा supervisor को, and supervisor बहुत beautifully आप क्या कहना चाह रहे हो through that dissertation वो समझ पाएगा. Next step is footnoting is mandatory. Footnoting बहुत ज़्यादा important होती है. Many people miss out on the fact कि footnoting की क्या importance है, but to be very clear, it is very important. Like it is as important as writing a beautiful, well-researched dissertation. इतनी ज़्यादा important है. Footnoting basically होती है कि कोई भी अगर आपने idea of your dissertation या कोई भी sentence या कोई भी thought आपने लिया है from any article, book, any source, any link, you have to quote it. तो basically अगर suppose मान लो कि आपने एक line as it is ली है from an article that you read on the internet, and अगर वो as it is line या अगर उससे उसके around मिलता जुलता उससे कुछ, या you maybe you're trying to paraphrase that line and you mention that in your dissertation, you have to give credit to the original writer of that line. तो उस टाइम पे footnoting बहुत ज़्यादा काम आती है. That is when, for an example, अगर आज आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो जिसमें आपने एक कोट किया किसी स्कॉलर का कोई कुछ वर्ड्स जो उन्होंने बोले थे, तो you mention those words and towards the end of that page you give credit to that author, to the original person जिसका वो original thought था. So that is how footnoting works. Plus if you want a separate video on how do you do footnoting, because footnoting थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस होता है इनिशियली व्हेन इट्स योर फर्स्ट टाइम यू डूइंग फुटनोटिंग, थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू गो अबाउट फुटनोटिंग, लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल. नेक्स्ट अप, एंड यू नो दिस इज़ लाइक अ वेरी सीनियर टू जूनियर एडवाइस जो मैं आपको दे रही हूँ. नेवर एवर कॉपी, डू नॉट कॉपी, देयर शुड बी नो प्लेजरिज्म. किसी भी तरीके का कोई भी प्लैग अगर हो जाता है, देन योर इंटायर मेहनत ऑफ राइटिंग दैट पेपर गोज डाउन द ड्रेन. डू नॉट डू दिस मिस्टेक. यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ अलाउ लाइक अ 10 to 15% प्लैग, बिकॉज कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में, विच ऑफकोर्स यू विल बी मैंशनिंग इन योर डिसर्टेशन पेपर, एंड वो आप चेंज नहीं कर सकते हो. सो यूनिवर्सिटीज़ आर ओके टिल दैट. बट अगर आप किसी का ऑलरेडी लिखा हुआ काम को कट कॉपी पेस्ट करके या 2-3 लोगों के काम को कट कॉपी पेस्ट करके अपना एक ओरिजिनल वर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू कॉज प्लैग दैट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर डिसर्टेशन, सुपरवाइजर को पता चल जाएगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स विच हेल्प देम चेक योर प्लैग. प्लस अ वेरी सिंसियर एडवाइस इज कि जब भी आप अपना कोई भी पेपर सबमिट करते हो, चेक द प्लैग एट योर एंड ऑल्सो, बिकॉज हो सकता है कि अनइंटेंशनली आप प्लैग कर रहे हो. मे बी यू आर राइटिंग समथिंग विच इज ऑलरेडी रिटन बाय समबडी एल्स इन द पास्ट, उससे सुपरवाइजर को लगेगा कि आपने कॉपी किया है. सो चेक प्लैग एट योर एंड. देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जिससे आप अपना प्लैग चेक कर सकते हो. इन केस यू आर एक्सीडिंग योर प्लैग, प्लीज़
एडिट योर डेजिटेशन अकॉर्डिंगली एंड आप उस 10-15% के ब्रैकेट से जो आपको यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया हुआ है उससे अपने प्लैग को नीचे ले आओ, बिकॉज यू नो प्लैग इज लाइक एन अकेडमिक क्राइम दैट यू माइट कमिट, तो वो गलती कभी भी मत करना। नेक्स्ट स्टेप इज कीप राइटिंग बिकॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट कैन बी मेसी। जब आप इनिशियली अपनी डेजिटेशन लिखना शुरू करते हो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू नो मे बी इफ यू आर राइटिंग इट तो आप वो यू नो यू टेयर दैट पेज एंड यू थ्रो इट अवे, और इफ यू आर टाइपिंग आप बैक स्पेस करके सारा हटा देते हो। इट इज़ वेरी कॉमन। और देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव रिटन मे बी 5 pages and then you know once you read them the other day none of those words make sense to you। तो ये होता है, it is very common, ये मेरे साथ भी हो रखा है। it happens with every person who has written dissertation in their lives। कभी भी नहीं होता कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट आप लिख रहे हो वो आपको पसंद आ जाए। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है। सो इट्स ओके इफ़ योर फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ अ लिटिल मेसी, जस्ट कीप राइटिंग। कोई भी थॉट आपके दिमाग में आता है रिलेटिंग टू द टॉपिक दैट यू हैव चोजन, राइट इट डाउन, पेन इट डाउन, उसको आप रिलेट करने की कोशिश करो। ट्राई एंड जॉइन द डॉट्स एंड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दैट एंटायर थॉट दैट यू हैव इन योर माइंड while you are writing it on paper or while you are typing it on your laptop। So it is completely okay to go a little here and there when it's your first time, and अगर आप लिखोगे ही नहीं so you will not realize कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। So now the final step, which is step number 7, is proofreading and submission। This is a very crucial step which you take before actually you submit your dissertation। So proofreading का basically मतलब ये होता है कि जब आपने अपनी पूरी dissertation लिखी, like I mean पूरी का मतलब है फ्रॉम द कवर पेज टिल द बिब्लियोग्राफी, आपने जब सब कर लिया है, देन यू गिव योर डेजर्टेशन अ रीड। यू रीड ईच एंड एवरी वर्ड विच इज रिटन बाय यू सो दैट यू आर एबल टू पिन पॉइंट एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स। किसी भी तरीके का कोई भी ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर है तो वो आप पिक कर पाते हो इफ़ यू आर प्रूफ रीडिंग योर एंटायर डेजर्टेशन। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग हेयर दैट जब भी आप अपनी डेजर्टेशन रीड कर रहे हो, ऑलवेज रीड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सुपरवाइजर और फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। आप कभी भी ये सोच के अपनी डेजर्टेशन मत पढ़ो कि मैंने लिखी है तो अच्छी होगी। नो, रीड इट फ्रॉम अ वेरी फेयर एंड अ वेरी अनबायस्ड पर्सपेक्टिव। एंड द बेस्ट टाइम टू रीड योर डेजर्टेशन इज कि जब आपने अपनी डेजर्टेशन लिख दी, keep it away for a week I'd say and then give it a read, because for a week you are completely off your dissertation and जब आप एक बारी after a week पढ़ते हो it gives you a very fresh perspective। आप बिल्कुल fresh state of mind में अपनी dissertation पढ़ रहे हो तो and then that helps you give yourself a better feedback on your dissertation। and proofreading actually helps you also to check if there are any mistakes। it helps you to check the flow and your footnotes as well, because footnoting में भी अगर कोई गलती होती है that is also a negative in the eyes of the supervisor। and आप check कर सकते हो flow। इसका मतलब वही है जो मैंने जैसे अभी earlier minutes of the video में बताया, that simply means कि आप एक चैप्टर को या एक हेडिंग को दूसरे चैप्टर या दूसरी हेडिंग से लिंक भी कर पा रहे हो या नहीं। that means that in totality is your dissertation making any sense, because if the chapters are all over the place then dissertation का जो जिसे कहते हैं ना, dissertation पूरी पढ़ने के बाद सुपरवाइजर को समझ ही नहीं आएगा कि what were you trying to say। so जब आप प्रूफ रीडिंग करते हो बेसिकली आप ये समझ पाते हो कि क्या dissertation पढ़ने के बाद आपको समझ आ रहा है towards the end of the dissertation कि क्या मतलब था and was every chapter making sense। अगर आप अपनी डेजर्टेशन पढ़ते हुए डॉट्स ज्वाइन कर सकते हो, यू आर एबल टू create sense, you're able to make sense from that entire piece of document that you have created, then you're on the right path। next one is ask someone to read your dissertation। अब इसका simple मतलब होता है that maybe you can take help from your family members, your friends, your peers to maybe just give your dissertation a read। just ask them to give your dissertation a read so that maybe they can tell you कि क्या आपने ठीक लिखा है क्या नहीं। so the best thing that you can do is maybe you can ask your family members
member or one of your closest friends to read your dissertation and give you like a very fair feedback, जिससे if there are any improvements that you have to make in your dissertation, you can do that. Next step is please be very careful of the format. अब format में of course जो मैंने अभी आपको format बताया वो सारी चीज़ें तो आई ही, but apart from that the spacing, the font and the margin. आपकी dissertation दिखने में कैसी लग रही है, if it is visually pleasing is a very crucial step, and usually हर university के जो basic format होता है spacing, font and margin का that varies. So please adhere to your university's guidelines. And lastly, please submit your dissertation and celebrate. So your dissertation journey has been very taxing. It has definitely taken a toll on you emotionally, physically and mentally. And post you submit your dissertation, it is your 100% right to celebrate it. Post you submit your dissertation, stop thinking about it and just celebrate. So before I conclude the video, I want to give you some of the bonus tips जो आपके बहुत काम आएगी whenever you begin your journey of writing a dissertation. So as I mentioned in the starting minutes of the video that I did my undergraduation and then I did my post graduation, and in दोनों ही degrees में I had to write dissertations, and all of these tips really helped me write my dissertation in a very nice manner, and eventually these tips also helped me to get really good marks in both of my dissertations. So the first step is that you have to choose a topic that really interests you. जैसे मैंने अभी आपको बताया that dissertation is something that you will have to live with for 8 to 9 months, and अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज करा है that actually does not interest you, it is very difficult for you to conduct your research on that topic and then to write about that topic. So please pick a topic that actually is of your interest. Second up, कोई ऐसा टॉपिक चूज करो which has literature available on it. अगर कोई ऐसा टॉपिक आप चूज कर रहे हो जिसपे बहुत ज़्यादा मटेरियल है ही नहीं to read and to research upon, it will be very difficult for you to write a good dissertation. So pick a topic which actually interests you, but वो टॉपिक ऐसा भी होना चाहिए जिसपे कुछ literature available है for you to read and research. Next up and very important is to start early, because in my opinion last minute work is low quality work, because आपको 8 to 9 months मिलते हैं, you almost have 1 year to write your dissertation, and अगर आप towards the end लिखते हो nearing to the submission date, you already have a lot of pressure कि आपकी deadline पास आ रही है, आप कैसे लिखोगे, there are so many things to do, इतनी ज़्यादा word limit है, आप कैसे catch up कर पाओगे. So under that pressure आप जो dissertation लिख रहे हो तो that is not of the best quality. तो please start early. As soon as you get to know about that you have to write a dissertation in your final year, start prepping for it. Next step is always back up your work. ये गलती कभी मत करना that either you are writing it on a piece of paper, और अगर आप टाइप कर रहे हो, आजकल के टाइम में most of us do type our work, never do this mistake of not backing up your work. There are many chances that electronic devices can go corrupt and all your hard work will be wasted. So always keep a backup on Google Doc, or you can just mail your document to yourself. Always keep a backup. Next up is please be very sure of the format and the footnoting. I know मैं ये बात बहुत बारी बोल चुकी हूँ, but प्लीज़ टेक माई एडवाइस एंड टेक माई ओपिनियन वेरी सीरियसली दैट जितना इम्पोर्टेंट एक डेजर्टेशन, एक अच्छी डेजर्टेशन लिखना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करना, एंड उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छे से एंड करेक्टली फुटनोटिंग करना. नेक्स्ट स्टेप इज प्लीज़ take feedback from your supervisor and please take the criticism positively. So जो भी वो आपको feedback दे रहे हैं, please take it in a positive way. Please take every criticism in a positive way and work towards that, because that at the end of the day will help you to write a good dissertation. Next up, there should be no plag. As I mentioned, किसी भी तरीके का कोई भी plag, there should be no work of copying. It should be your 100% original work. कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट मत करो, because that is an academic crime that you are committing. Next up is stick to word limit. जो भी word limit है आपकी dissertation की, जो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको
बोली है, प्लीज़ 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 स्टिक टू दैट, डू नॉट एक्सीड इट। एंड बहुत कम भी मत लिखना, बहुत ज़्यादा भी मत लिखना, राइट समवेयर नियर टू योर वर्ड लिमिट, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी 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 क्रूशियल पॉइंट दैट सुपरवाइजर्स टेक इन टू अकाउंट। एंड लास्टली, जब भी आप डेजिटेशन लिख रहे हो, एज आई मेंशन, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, सो इन बिटवीन प्लीज़ डू टेक ब्रेक्स टू अनवाइंड। बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स हो एंड देन गेट बैक टू राइटिंग योर डेजिटेशन। अगर आप एट अ स्ट्रेच लिखते हो, इट विल बी very 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 taxing and tolling for your mental and physical health. So keep all these points in mind to write a beautiful dissertation. I really hope that you found this video useful. Please let me know in the comments down below if you have any other doubts relating to writing a dissertation, and I will definitely clear all your doubts. Plus, please like, share, comment and subscribe. I come up with legal videos in which I explain law topics in a very simple manner. So please subscribe to my channel so that you are notified whenever I put up a new video. Also, drop down your dissertation topics in the comments down below. And in case you need any feedback on your dissertation, you can always let me know. You can DM me on my Instagram, and you can just drop me a message in the comments down below. Good luck with your dissertations. Bye bye.